Good evening, everyone. First, I would like to thank everyone in the audience for taking the time to join us. I hope that you find the next hour to be interesting and insightful. So, some background to the panel. The historical, social, and institutional othering of Adivasi communities has led them to live lives of deprivation, discrimination, and extreme vulnerability. While Adivasi resources on wellness are being lost in the garb of development, this group of other communities have been under constant surveillance for signs of mental illness by the biomedically oriented mental health community. This dominant discourse of the mental health sector has often been ignorant of the social, political, and economic context of distress and suffering, and of the overall Adivasi conceptualization of health itself. Often misrepresented and misunderstood, Adivasi communities face new challenges as mental illness becomes the new tool of subjugation used by the state. This panel is titled Centering the Wellness of Adivasi Youth. Panelists will highlight the various mental health needs of Adivasi communities, especially Adivasi youth in education and sports, how their mental health is conceptualized within mainstream mental health discourses, and discuss possible mechanisms to accommodate indigenous knowledge systems to cater these needs. Please note that the moderator, Yensi, is available to translate parts of the discussion to Hindi if need be. You can let us know if you would like any part of the conversation to be translated by using the chat box. I will now hand it over to Saranj, who will provide a translated description of the panel and also introduce the panelists. Thanks, Anugraha. I welcome you all to today's panel titled मानसिक स्वास्थ्य आदिवासी युवाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा. A little bit about the panel. पैनल के बारे में थोड़ा सा विवरण. आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक, सामाजिक और संस्थागत अधरिंग ने उन्हें वंचित और अत्यधिक भेद्यता का जीवन जीने के लिए प्रभावित किया है. विकास की आड़ में आदिवासी संसाधनों को भुला दिया जा रहा है. आदर्श समुदायों के इस समूह को मानसिक स्वास्थ्य समुदाय द्वारा मानसिक बीमारियों के संकेतों के लिए निरंतर निगरानी में रखा जाता है. मानसिक स्वास्थ्य समुदाय अक्सर संकट और पीड़ा के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों और स्वास्थ्य की समग्र आदिवासी अवधारणाओं से अनभिज्ञ रहा है. अक्सर मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंटेड आदिवासी समुदायों को नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मानसिक बीमारी राज्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधीनता का नया उपकरण बन चुका है. ये पैनल आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी युवाओं के विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में बहस करेगा. कैसे उन्हें मुख्यधारा के मानसिक स्वास्थ्य प्रवचनों के भीतर गलत अवधारणाबद्ध किया जाता है और इन ज़रूरतों का पूरा करने के लिए इंडिजिनस ज्ञान प्रणालियों को समायोजित करने का पर भी चर्चा करेगा. I'll take this moment to now introduce the moderator for the session, Yensi Raniogun. Yensi hails from Odisha and belongs to the Mundai Adivasi community. She is a master's student of applied psychology at DIS, Mumbai, who is interested in understanding Adivasi identity and culture. Apart from this, she enjoys dancing, doodling, as well as traveling. I would also like to introduce the panelists. Panelists के बारे में विवरण. Mary Rajni Topo. Mary Rajni Topo is a practicing counseling psychologist hailing from Raulkela, Odisha. She did her bachelor's and master's degree in psychology from Sambalpur University, Odisha. She completed her MPhil in Psychology of Education from Zakir Hussain Center for Educational Studies, School of Social Sciences, JNU. Now she is working as a school counselor in Delhi. Abhay Maji belongs to the Santhal tribe, a Munda ethnic group. He is an undergraduate student of English literature at St. Stephen's College in New Delhi, India. He loves having discussions on social issues, international politics, history, mythology, science fiction, and fantasy literature. He is into creative writing and political writing. Bineet Tete is currently a third-year student at St. Stephen's College in Delhi. He is a member of the Khariya community, which is an indigenous tribe native to Jharkhand and Odisha. He is enthusiastic about mountaineering, cycling, and reading books.
Swati Singh Armo. Swati Singh Armo is a medical student hailing from Chhattisgarh. She belongs to Gond tribe. She is a part of Maitri, a wellness corner group started by young students from marginalized communities to provide mental support to ST and ST students. She likes reading books and sketching. She's interested in issues of caste, indigenous, and health, and is passionate about building narratives from a social justice lens. We also were supposed to be joined by Deepa Pawar, but she couldn't be present at this panel because of some scheduling issues. So I wouldn't take a lot of time and hand it over to Yancy, who will be beginning the discussion for today. Thank you. And I do apologize in case if uh, something is misworded or not put in the correct, um, uh, you know, correctly worded sentence. So yeah. Much, Saran. And Johan, everybody, good evening. So I will be moderating the event. So as we are discussing about the mental health and मानसिक स्वास्थ्य हम जैसा बात कर रहे हैं तो I would like to welcome the panelists. Uh, so I would just know from the panelists that when we are talking about mental health in the Adivasi, how do we understand it? कि जैसे आदिवासी क्षेत्र में हम मानसिक को कैसे समझते हैं? So I would like to welcome your Beneath, Abhay, anybody, or Mary, if you want to go ahead. सबको जोहार. मेरा नाम मैरी रजनी टोपो है. मैं एक प्रैक्टिसिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, वर्किंग एज अ स्कूल काउंसलर इन दिल्ली. हम आज विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आदिवासी क्षेत्र में किस मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं. तो जहाँ तक देखा जाए, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2015-16 के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा जो भी यहाँ हेल्थ सर्वे किया गया, इसमें मोर्टालिटी रेट देखी गई है. अनीमिया, वुमेन में अनीमिया कितना % है, उसको देखा गया. लेकिन ट्राइबल मेंटल हेल्थ को कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. खासकर मेंटल हेल्थ को उतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया है. और आदिवासियों के क्षेत्र में तो आदिवासी मेंटल हेल्थ को तो इग्नोर ही किया गया है. नेग्लेक्टेड एरिया है. एंड द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज में भी ये हमेशा दरकिनार कर दिया गया, उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया गया है. हेल्थ रिसर्च भी ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ही ग्लोबली भी कम पाया जाता है, जितना भी डेटा हमें अवेलेबल है. और रिसेंटली जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 2015-16 के डेटा के हिसाब से यही बताया जाता है कि हर 20 में से एक इंसान को या एक व्यक्ति को डिप्रेशन, एंड 150 मिलियन इंडियन रिक्वायर्स एक्टिव मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस. और ये इसका महत्व तब ज़्यादा समझा गया मेंटल हेल्थ का जब कोविड के दौरान हम लॉकडाउन में घरों में बंद थे. तो उस समय में हेल्थ के साथ साथ में ज़्यादातर जब हमारा सोशल इंटरेक्शंस लोगों के साथ में उतना ज़्यादा नहीं होने सका, व्हेन वी आर ऑल अलोन फेसिंग अनसर्टेनिटी, तो ये ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्या होगा क्या नहीं, हेल्थ का फियर, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, ये सारे बहुत सारे मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा केंद्रीभूत किया कि इनफैक्ट द डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी काउंसलर्स का नीड को पहचाने उस दौरान में. तो इस दौरान पैंडेमिक के समय में हम हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ
पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो उससे पहले उतना ज़्यादा नहीं जानते थे और रोल ऑफ काउंसलर्स भी उतने ध्यान नहीं दिया जाता था इसके बाद इससे पहले। लेकिन पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो जब हम मेंटल हेल्थ की डेटा के ऊपर बात करते हैं तो जो हमारा बहुत सारे जो इसके ऊपर स्टडी हुए तो ये कहता है कि ये दिखाता है कि जब ट्रेडिशनल लाइवलीहुड सिस्टम से आदिवासी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ धकेला गया, उधर स्ट्रेच किया गया, तो उनके जो लॉस ऑफ कस्टमरी राइट्स ओवर द रिसोर्स लाइवलीहुड रिसोर्सेस की वजह से उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, उससे ज़्यादा क्या हुआ कि लो सेल्फ एस्टीम एंड बहुत बड़े जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड स्ट्रेसेस ये ज़्यादा उनमें देखे गए। और मेंटल हेल्थ पे अगर मैं पूरा जनरल व्यू रखूं तो मेंटल हेल्थ जिस तरह से हमारे शारीरिक जो स्वास्थ्य को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, वैसे ही ये भी ज़रूरी है। जिस तरह से हम मेंटल हेल्थ के बारे में आज बात कर पा रहे हैं, इनफैक्ट 3-4 साल पहले इस पे उतना ज़्यादा बात भी नहीं होती थी। हम यही जानते थे कि मेंटल हेल्थ अगर मानसिक स्वास्थ्य पहले की अगर बात करें तो ये टैबू था, इसके बारे में कोई उतना बात नहीं कर पाता था, खुल के बात नहीं करता था। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हर कोई इजीली बात कर लेता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर कहीं पे दर्द है डॉक्टर को दिखाएं, कभी कुछ तकलीफ हो गया। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पहले आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जैसे कम्युनिकेबल डिसऑर्डर लाइक HIV, एड्स के बारे में जब जागरूकता फैलाई गई तब बात हुई। लेकिन आज भी फिर भी लोग इस पे बात करने में संकोच महसूस करते हैं। तो जब फिजिकल हेल्थ के बारे में जब बात करना के लिए लोग हिचकिचाते हैं तो मेंटल हेल्थ के बारे में तो हिचकिचाना वाली बात अभी खुल के हम बात कर पा रहे हैं, इससे पहले तो हिचकिचाहट थी ही। और लोग फिजिकल जब भी कोई एलिमेंट होता था, आंखें खराब हुई या इनफैक्ट कोई भी हेल्थ इशू होता था तो वो डॉक्टर को तक पहुंचते थे, मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, है अभी। तो लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, लाइक अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को लेकर के घबराहट हो रही है, पैनिकनेस, पैनिक होना, पैनिक अटैक आना या डिप्रेशन या किसी चीज़ को आप लत पे पड़ जाना, तो ये सारी चीज़ों पे उतनी बात नहीं होती थी। तो ये भी ज़रूरी है, ये अब हम महसूस करने लगे हैं, ज़्यादा महसूस करने लगे हैं। ये अच्छी बात है कि हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं। और मेंटल हेल्थ पे जब हम 2015 में जब UN में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने तो उसमें जो टारगेट 3 में, गोल 3 में हेल्थ को जो उसमें स्ट्रैटिफाई किया गया, तो उसमें मेंटल हेल्थ की भी बात की गई है। और उस मेंटल हेल्थ में ये कहा गया कि जो मोर्टालिटी रेट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कम किया जाए। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और चेंजेस पैंडेमिक आने के बाद तो और भी ज़्यादा मायने रखते हैं कि हमें सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्यों किया जाए। इनफैक्ट हर एरिया में हमें मेंटल हेल्थ की बातें और उसके जो ट्रीटमेंट एंड मेंटल हेल्थ को प्रमोट और उसका वेलबींग को प्रमोट करने में हमें काम करना चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए जी। और हमें लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में साइको एजुकेट भी करना है कि सिर्फ जिसको जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं
वो चाहे बहुत ज़्यादा सीवियर हो या माइल्ड हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें सिर्फ जो जो इससे फेस कर रहा है सिर्फ उसी को नहीं, उसके आस पड़ोस में भी है, हमारे जो सोसाइटी को भी और कम्युनिटी को भी इसके बारे में अवेयर करना और उसको बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। कोई भी ये चीज़ चूज़ नहीं करता है, कोई भी जो भी प्रकार के मानसिक तनाव या कोई भी अवसाद होता है या वो चूज़ नहीं करता है ना? तो उसको सिर्फ उसको हमें क्रिमिनलाइज़ या उसको कोई गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए ताकि सपोर्ट मिल सके और उस चीज़ के बारे में बात हो सके, उसके बारे में ट्रीटमेंट और उसके वेल-बीइंग को प्रमोट कर सके। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। एंड आपने सही कहा कि जैसे कि विजिबल डिजीज के बारे में बात करने में डिफिकल्टी होती है, सो एंड इट इज ऑल्सो इनविजिबल, वी आर नॉट एबल टू सी इट। So I would like to ask our students and then Beneath and Abhay. So what do you understand by mental health and how do you see it in a student perspective? So जैसा कि उन्होंने पहले ही कह दिया, हमसे पहले जो पैनलिस्ट थी उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है अपने इंडिया में, एंड आदिवासी मेंटल हेल्थ तो और भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग हमेशा से फेस करते आए हैं। उसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ जो इशू लाइक मेंटल हेल्थ जो एक पहले से एक इग्नोर्ड एरिया है ऑफ स्टडी, वहाँ पे हम लोग कैसे अपना लाइक अपना एक छाप छोड़ सके, वो हमने हमने अब तक वो खोजा नहीं है। बट अगर हम लोग बोले तो जैसे व्हेन वी कम फ्रॉम लाइक अ very central university where we have people from like where we have students and some of the best ones from all over the world, all over the country and some from like even abroad, तो उस areas में हम लोग like वही सेम इश्यूज हम लोग हम फेस करते हैं जो सब स्टूडेंट्स फेस करते हैं, लाइक सोशल एंजाइटी, पैरानोया, मे बी some kind of depression or clinical, some kind of clinical disorder. But when we talk about the minorities such as the Adivasis or people जो लोग पिछड़े तबके से आते हैं इंडिया के, जैसे आदिवासी या दूसरे दूसरे कोई माइनॉरिटीज, उन सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ सहना पड़ता है because of the already like enforcing social exclusion and the discrimination they are already facing in their own community and in their own societies. So इन सबको एडप्ट करते करते ये एक बहुत वियर्डली लाइक अगर हम लोग आदिवासी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत वियर्ड सा ये कॉन्सेप्ट लाइक एक बहुत वियर्ड सा स्टडी बन जाता है कि जहाँ पे हम लोग एक तरफ से हम लोग ये एक मतलब सारे जितने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उन सब के बारे में भी बात करेंगे, एंड apart from that हम लोग को उसको adapt करना पड़ेगा that the things that these students, the students who have been away from the general public, उनके लिए भी बात करना पड़ेगा that they are facing some kind of social exclusion or some kind of discrimination in their own colleges. Like अगर हम बोले like मैं और Beneath, the other panelist Beneath, हम दोनों सेम कॉलेज से आते हैं, so जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब आई नेवर फाउंड माय ओन लाइक एनीवन फ्रॉम माय ओन कम्युनिटी, सो इट वाज लाइक अ स्पेस जहाँ पे हम लोग बार बार इन्फोर्स किया जाता है कि या यू आर इक्वल एंड यू हैव अ स्पेस, यू हैव अ वॉइस, but when you are like led to believe on that but you don't find it to be like a don't find anything that is on your own community, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है वो चीज खुद को सहना, एंड वो ऐसे बन बन के एक टाइप का लाइक it piles up to become something else that can lead to very harmful effects in the mind and body. So ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो like आदिवासी मेंटल हेल्थ को like affect करती है एंड जो पाइल अप करते जाती है, एंड आई थिंक जो वो एक पूरी डिफरेंट व्यू ऑफ स्टडी हमें दिलाती है ऐसे, ये अगर हम लोग इसको ऐसे जांच पड़ताल में करेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी नीड लाइक अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ स्टडी, वो तो पहली बात है, बट अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग आदिवासी को लाइक एक अलग मेंटल हेल्थ का लाइक स्टडी करना होगा, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट नीड फॉर इट. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड, हु आर स्टडिंग फॉर इट, उनके लिए एक डिफरेंट नीड होगा, क्योंकि जब वो सोसाइटी में जाते हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता है, उसके वजह से उनके लिए लाइक डिफिकल्ट हो जाता है लाइक नॉट टू अप्रोच एनीवन, नॉट टू अप्रोच द
लाइक द काउंसलर्स, द साइकियाट्रिस्ट, जो लोगों के प्रॉब्लम समझ नहीं पाते क्योंकि वो लोग कभी भी ये स्टडी हुए नहीं है, तो उनको भी ये समझ नहीं आ पाता कि क्या हो रहा है. तो वी नीड पीपल who are able to talk to us about what we are going through, and also we need to be aware and maybe talk more about the whole mental health issues that are going on right now. Thank you. Yeah, I agree to your points, away, because the study of mental health is also so much westernized. A collective, understanding is very much needed for the tribal population and for the Adivasis, because you said that there are like this situation, global, but still we don't want that global perspective to enforce upon us that okay, this is happening with you, because it's just because society which is create problems for marginalized community, that they face certain issues. So yeah, I would like responses from others panelists also, anyone if you want. मैं वही मतलब मैं भी अभय के साथ ही कॉलेज में था, तो वही बोलना चाह रहा था कि जब मतलब हम लोग ऐसे कॉलेज जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो हम लोग तो मतलब ऐसे छोटे गांव से उठ के वहाँ जाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए उस स्पेस में कंफर्टेबल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सब होते हैं बड़े बड़े शहरों से, Tier 1 सिटीज से, तो और प्लस वहाँ हो जाता है कि आप खुल नहीं सकते हैं, आप खुद को बता नहीं सकते हैं कि आप, हाँ अगर आप बताते हैं कि आप आदिवासी है तो लोग आपको जज करते हैं, तो वो अगर आप खुल नहीं पाते तो फिर आपके मेंटल हेल्थ में जो अफेक्ट करता है और आपको भी मतलब दिक्कत होता है, आपको पढ़ाई में भी दिक्कत होता है। ऐसा इश्यूज मेरे को लगता है अभय ने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया था, और ये एज ए जनरल मतलब जो हम लोग आदिवासी इधर पढ़ने आते हैं उन्हें फेस होता ही है। तो अगर मतलब हम अपने आप को खोल नहीं पाएंगे तो हम इतने दूर जो पढ़ने आए हैं तो वो पॉइंटलेस हो जाएगा ना, मतलब हम इतने दूर आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ पढ़ने के लिए, पढ़ा करने के लिए, और लेकिन हम खुद को खोल नहीं पा रहे, हम आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं पा रहे, लोगों से बातचीत हो नहीं पा रही ठीक से। तो इस वजह से अगर हम खुद को मतलब खोलना चाहते हैं, तो अगर हम मेंटल हेल्थ इसके ऊपर मतलब अगर रिसर्च वगैरह स्टडी वगैरह करें और मतलब एक अलग से कलेक्टिव रखे, क्योंकि इश्यूज वही हो जाता है कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ब्रॉड हो जाता है कि सबके लिए, ऐसे जनरल लोगों के लिए सबके लिए होता है मेंटल हेल्थ, बट देन वही कि हर व्यक्ति एक ही जगह से नहीं आ रहा होता है, कुछ लोग आ रहे हैं शहरों से, कुछ आ रहे हैं हम लोग गाँव वाले, तो वैसे में हमें मतलब हमारे नीड्स अलग होते हैं और उनके नीड्स अलग होते हैं, तो अगर हम सबको एक ही साथ एक ही कैटेगरी में रख दें तो वो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमारे नीड्स अलग है, उनके नीड्स अलग हैं, तो अब उनके हिसाब से अगर कुछ बनाया जाता है मेंटल हेल्थ के लिए, कुछ काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो उनके इश्यूज को मतलब आगे लाया जाता है, तो फिर वैसे में उनके इश्यूज आगे बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे इश्यूज उनसे अलग है, तो हमारे लिए थोड़ा सा अलग होना चाहिए। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अलग से मतलब आदिवासियों के अलग होना चाहिए, और मतलब हर किस्म के हर लोगों के लिए, हर जैसे भी लोग हैं, तो एज ए जनरल पब्लिक मतलब जनरल कैटेगराइज नहीं कर देना चाहिए, हर किसी को एक साथ नहीं लाना चाहिए, मतलब हम सब अलग अलग जगह से आते हैं, तो हर किसी के लिए अलग तरीके से, क्योंकि हम सब एक साथ एक ही जगह से नहीं आ रहे हैं, हमारा अपब्रिंगिंग अलग है, उनका अपब्रिंगिंग अलग है, इस वजह से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि बस हम मतलब एक अलग से, हमें भी आदिवासी कम्युनिटी और बाकी जो मार्जिनलाइज्ड दूसरे कम्युनिटी से, उनके लिए भी एक स्पेस होना चाहिए कि हाँ वे भी खुल सकते हैं, ताकि वे खुद को भी एक्सप्लोर कर पाए, और जब वो वहाँ मतलब हम यहाँ आते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो फिर हम खुद को भी पढ़ा सके, और एक तरह से खुद को पढ़ाएंगे तो फिर अपने साथ अपने कम्युनिटी को भी साथ लेके चलेंगे, जिससे सबका बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए अगर हम मतलब आदिवासियों के अलग से अगर थोड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज को अगर हम उनको एड्रेस करें तो फिर और बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे जनरलाइज करके मतलब सबके लिए करते हैं तो फिर उसमें वी आदिवासी फील लेफ्ट आउट। सो लाइक अगर हम एक साथ मतलब उनको थोड़ा सा अलग से भी करें तो अच्छा है।
Exactly. Like ने जैसे कहा कि एक साथ लेके आना, it would feel like we have been put into boxes, you know, this which we don't want. तो आपने सही कहा कि हमें ऐसा boxes में डालना नहीं चाहिए, और I hope कि जल्द ऐसा कुछ हो. Swati, I would like to hear from you. हेलो, मैं ऑडिबल हूँ क्या? हाँ, go ahead. ओके, ठीक है. तो शिवा जोहार सबको. आई एम मेडिकल स्टूडेंट हियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड आई एम हियरिंग फ्रॉम अ गोंड ट्राइब. सो लाइक अपने थर्ड ईयर में सब्जेक्ट होता है पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. तो यहाँ पर क्या होता है कि हम डेफिनेशंस देखते हैं. हेल्थ का डेफिनेशंस क्या है, मेंटल हेल्थ का डेफिनेशंस क्या है. तो इफ वी लुक एट द डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ एंड अ मेंटल हेल्थ, तो अगर आप लाइक हिस्टोरिकली जाके देखेंगे और अब तक, तो वो टाइम टू टाइम ये डेफिनेशन चेंज होता गया है. अगर आप किसी प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर इकोलॉजिस्ट या कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, ये जो डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ है वो चेंज होता रहा है. बट ये जो वेस्टर्न डेफिनेशन या फिर मैं बोलूंगी ये जो डिसीज डिफिशिएंट मॉडल है हेल्थ का, इसमें क्या होता है कि आप लाइक एक डिसीज को पैथोलॉजाइज करते हो लाइक एक पर्सन या एक कम्युनिटी को, बट इट हैज लाइक समवॉट फेल्ड टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज. वो कुछ लाइक इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग कोई सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स देख सकते हैं, लाइक कास्ट हो गया, क्लास हो गया एंड जेंडर. और जैसे कि इन द इंडियन सोसाइटी देयर इज अ इंग्रेडेड हायरार्किकल सिस्टम, और फॉर एग्जांपल आप कास्ट सिस्टम ले लीजिए या फिर आदिवासी सिस्टम, जो शायद वो इस सिस्टम से अलग रहे हैं, और which makes them different from other groups are the territorial and cultural possession. and पर भी वो मतलब ये सिस्टमिक ऑपरेशन फेस कर रहे हैं, जो कि हर फील्ड ऑफ लाइफ में ये इम्पार्टेड या चला जाता है. और ये उस लेवल तक चला गया कि वो आपके थेरेपेटिक सेशन, जो थेरेपेटिक जो स्पेसेस होते हैं वहाँ लाइक इन्फिल्ट्रेट हो गया है. एंड many spaces actually don't understand this discriminative layer or the systemic oppression, and therefore there is a need to understand the tribal culture and various nuances that occur within this identity, this narrative, to build a safe spaces for student. Yeah, it's like. Thank you so much, Swati. So exactly, you told so right. So I would want to understand also that how would we differentiate, just few points or your observations also. What are your observations a non-Adivasi might not face, a Adivasi person would face, like regarding mental health issues? Thank you. And even can go ahead. यस यान्सी, जब हम आदिवासी कहते हैं या हम जब अदर्स कहते हैं, तो शायद हम मुख्य धारा के लिए अदर्स हैं, या हमारे लिए जो मुख्य धारा की जो बात कहते हैं वो अदर्स हो सकते हैं. लेकिन पहले तो ये बता दें कि जो हम आदिवासी, जो हम शेड्यूल्ड ट्राइब कह रहे हैं, वो कास्ट सिस्टम में नहीं आते हैं. हम ना ही ब्राह्मण हैं, ना ही क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं. ठीक है, हमारा एक अलग सिस्टम है. लेकिन हमें जब हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, भाषा, हमारा रहने सहने का और मानने गुनने का, हमारे विश्वास के आधार पे हमें एक अलग पहचान मिली है. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जब राइट्स दिए गए, जब संविधान बना, उस समय में हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में सम्मिलित किया गया. और हम ज्यादातर देखते हैं ST/SC. तो हम जो शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट दलित जो कास्ट सिस्टम के पार्ट है, हम उसकी पैरेलल नहीं है या उसके ऑपोजिट नहीं है. हम अलग ही हैं, हम उनके दायरे में नहीं आते हैं. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर नॉट इक्वल. बट हमें जो स्लैश जो दिया गया है, जब SC एंड ST जब हम लिखते हैं तो स्लैश में जो लिखते हैं,
तो हमें एक कैटेगरी बना दिया गया कि हम दलित या दलित के नीचे या उसी के समानांतर में आते हैं। लोगों का ये परसेप्शन है कि हम ब्राह्मण से नीचे हैं या क्षत्रिय से नीचे हैं या वैश्य से नीचे हैं, हम इक्वल टू शूद्र है। नहीं, एक्चुअली हम लोग नॉट, हमारा स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। ये लोग नहीं समझते हैं। जो जनरल लोग, जो अदर्स हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो हमें एक समान जैसे समझते हैं। तो हम उनके प्रति जो हमारा जो ट्रीटमेंट है ना, कि ये जंगल से आते हैं, इनको समझ नहीं आती है, दे आर एक्चुअली, ये वो माइंडसेट है कि वी आर इक्वल टू दलित। नहीं, एक्चुअली में दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और हमें उसी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन की फेस करना पड़ता है। एक अलगाव व्यवहार जो दिखता है ना, लोग हमें जिस तरीके से देखते हैं, हमारा रूप रंग, हमारे बोल चाल, हमारे आस्था के बारे में बोला जाता है, तो उनको उनके जो मुख्य धारा के हिसाब से, हम अपना मुख्य धारा नहीं, हमारा मुख्य धारा अलग है। तो उनकी मुख्य धारा के हिसाब से जब हम फिट नहीं बैठते हैं, तो वो हमें अलगाव की नजर से देखते हैं। आदिवासी के कहने का मतलब वही पत्ते पहनते हैं, वही जंगल में ही रहते हैं, बट उसी दायरे में ही देखते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। हमें हर तरीके से हमें अलगाव व्यवहार का सामना करना पड़ता ही है। जब हम कहीं कुछ भी करने जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं या कोई खेल कूद में जाते हैं, किसी में भी एक आदिवासी पीछे नहीं है, लेकिन उसको ये फील कराया जाता है कि आप किसी भी तरीके से मुख्यधारा के समानांतर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं जानते, बोलनी नहीं जानते हैं, आप स्मार्ट नहीं, आप उनके जैसे दिख नहीं पाते। तो उस होड़ में जो उनके जैसे बनने के पीछे जो हमारे युवा हैं या हम खुद भी हैं, तो उस होड़ में हम अपने आइडेंटिटी को पहचानने और अपने ही आदिवासी होने का जो ग्लानि भाव को हम लोग ढो के चलते हैं ना। तो ये एक एक काइंड ऑफ ट्रॉमा है, राइट। सो एसटी, अपने एसटी होने का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब होने का एक बहुत लोग में, युवाओं में मैंने देखा है, ग्लानि है कि वो अपने आप को आदिवासी या अपने टाइटल से जो जाने जाते हैं, वो बोलना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि अगर कोई जान लेगे तो क्या कहेगा, राइट। सो ये जो अलगाव व्यवहार है, ये जनरल माइंडसेट ऐसा है कि आदिवासी जो है वो निम्न तबके से आते हैं। ऐसा है नहीं, निम्न तबके। आप देखिए, हर आदिवासी कम्युनिटी अपने आप में रिच है, अपने आप में अलग भाषा है, अलग खान पान का तरीका है, और उनकी वर्ल्ड व्यू कभी भी, एक आप इंडिया के भी आदिवासी देख लीजिए, चाहे आप कनाडा का आदिवासी देख लीजिए, चाहे आप पापुआ न्यू गिनी का आदिवासी देख लीजिए, सदर्न अमेरिका के आदिवासी देख लीजिए, न्यूजीलैंड, सब आदिवासी के आप देखेंगे वर्ल्ड व्यू एक ही टाइप का है। वो एक ही पहनते हैं, उनके मानने गुनने का तरीका भी एक है, वो नेचर को वर्शिप करते हैं, और हर एक चीज में उनका टोटेमिज्म है। उनका जो फिलॉसफी है, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आज के हिसाब से इगैलिटेरियन और काफी सिविलाइज्ड है ना, बात करने का, सम्मान करने का तरीका। आप एक यहाँ के आदिवासी, आप कनाडा के आदिवासी के साथ पूरा एग्जैक्टली आप मैच कर पाएंगे। हाँ, भाषा अलग हो सकती है ना, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन आपके जो वर्ल्ड व्यू है, आदिवासी वर्ल्ड व्यू, आदिवासियत जो है, वो कहीं ना कहीं आपको मैच करते हुए दिखेगा। ये आपको दूसरे कंट्री के मेन स्ट्रीम सोसाइटी, एक दूसरे सोसाइटी से हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, राइट। तो एक बात है ये। और जो आदिवासी में जो इंटर जनरेशन, जैसे पहले कम्युनिटी कहाँ अपने इलाके में रहती थी, आसपास में नेचर था, जंगलें थी। जब इनको किसी भी तरीके से, विस्थापन के तरीके से या जीने खाने के होड़ में कहीं और माइग्रेट करना पड़ा, या
किसी डेवलपमेंटल कहीं खनिज खनन हुआ या रोड बने या डैम्स बने, उसके चलते माइग्रेशन, विस्थापन, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। और जहां जहां आप देखते हैं आदिवासी, वहां पे आप देखेंगे रिसोर्स कर्स, मतलब कि जहां आदिवासी हैं वहां रिसोर्सेस, तो वहां भी हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया रहा है। तो इस एरिया में आप देखें कि मिलिट्री इंटरवेंशन, बाहरी लोगों का चढ़ाव, और उनके साथ में जीने के जो जद्दोजहद थे, जो आदिवासी लोग पहले अपने जो मूल जगह से दूसरा जगह चले गए, या फिर मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में वो अपने घर जंगल जमीन को छोड़ करके अभी वेस्टर्न एजुकेशन या अभी जो फॉर्मल एजुकेशन में ट्रेन होने के बाद में शहरों में आए। जो मुख्य धारा में, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश या फिर जो स्टेट लैंग्वेज है उसको बोलने के क्रम में आपने कहीं पे जॉब किया, कुछ किया, तो उसमें जो पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल क्या कहेंगे नॉलेज सिस्टम था, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग बच्चों को पढ़ाते थे, या कम्युनिटी ही खुद बच्चों को पालती थी। बच्चा पैदा होता था लेकिन पूरा कम्युनिटी उसको पालती थी, राइट। तो वो जो उस जनरेशन से अभी के जनरेशन में जो गैप है, तो इंटर जनरेशनल ट्रॉमा है, राइट। और इस सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक और चीज जोड़ना चाहेंगे कि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा को हैंडल करने लायक अभी तक से जो मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारे जो काउंसलिंग प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो कि कल्चरल सेंसिटिव होना चाहिए, अभी तक से उतना हो नहीं पाया है। और मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी जब हम आदिवासी क्षेत्र में देखें या आदिवासी कम्युनिटी को देखते हैं, तो उन तक भी हेल्थ फैसिलिटी पहुंच नहीं पाती है। तो मेंटल हेल्थ तो दूर की बात है, वो तो बहुत ही मतलब जो थोड़ा बहुत समझता है कि हाँ बहुत ज्यादा साइकोसिस से डील करता है, बहुत ज्यादा जैसे न्यूरोसिस का मतलब है कि आपको मानसिक तनाव है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, जो कि ट्रीटेबल है, वो के लिए आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं। लेकिन जो साइकोटिक, बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल मानसिक विकृति की जब समस्या आती है, तब लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन ट्राइबल्स एरिया में या ट्राइबल ज्यादातर उनको हॉस्पिटलाइज होते हुए हमने कभी देखा नहीं, उतना देखा नहीं, होते हैं लेकिन उतना देखा नहीं। उनके में अवेयरनेस की कमी है, हो सकता है, और हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और काउंसलर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और स्टेट भी उतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देती है। और जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं और जो ANM है और जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम करते हुए दिखता है, लेकिन उतना सीरियसली अभी तक उतना इस पे उतना काम नहीं हो पाया है। थ्रू सम NGOs ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दे रीच, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत मिनिमम है, इस तक पहुंचना चाहिए। और जो आदिवासी कम्युनिटी है, पहले क्या था कि कम्युनिटी एक जगह, एक गुट में रहती थी, कभी भी इंडिविजुअलिज्म नहीं था। जब मॉडर्नाइज्ड सिस्टम जब आए, लोग यहाँ पे जब शहर में बसने लगे, जब तब इनमें एक इंडिविजुअलिटी या व्यक्तिभाव आया। नहीं तो आदिवासी कम्युनिटी हमेशा एक होल कम्युनिटी को ये करता है। कभी भी आप देखेंगे कि आदिवासी कभी अगर लाइन राइस देखेंगे तो एक बंदा का नहीं है, वो पूरा कम्युनिटी का है। एक जो जगह भी है, उनके पास जो प्रॉपर्टी भी है, वो अकेले एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरा कम्युनिटी का होता है। तो हाउ कैन, जब रिसोर्सेस एवरीथिंग इज दे डीलिंग विद द कम्युनिटी, हाउ कैन, मतलब जब हेल्थ की बात कहेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता। और मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले उतने आदिवासी में नहीं दिखाया जाता था,
क्योंकि वो कम्युनिटी, कुछ भी हुआ वो कम्युनिटी को अप्रोच करते थे, अकेलापन होता नहीं था। कुछ भी काम किया, गांव में भी काम हो रहा है, अपना खेत में भी काम कर रहे हैं, दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं, जैसे मदईत का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कम्युनिटी लाइफस्टाइल है इनका, हमेशा कम्युनिटी का ही बात करेंगे ये। तो कभी गुट में रहते थे, अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ रही है, तो अकेलापन आ रहा है, तो इसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मैनिक मानिया, वो सब होना लाजमी है, मतलब ये फेस हो रहा है। और अप्रोच जो कर पा रहे हैं वो तो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। और जी, पहले आदिवासी कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ या फिर अबनॉर्मल बिहेवियर जैसे इश्यूज रहे हैं। अदरवाइज अगर जैसे अगर हम सादरी में कहें बाही होना या बाइसी होना या बाहा हो गया, ये शब्द जो है था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पागल हो जाना, नहीं, पागल इज नॉट डिफरेंट। बाही हो जाना इज लाइक समवन इज losing her sense or is not abnormal speech or talk kind of, not normal, but not पागल। it's बाही होना is not पागल होना, या फिर it's just making not losing the sense। तो उतना हद तक नहीं था आदिवासी कम्युनिटी में। लेकिन अब जिस तरह से लाइफस्टाइल है, लाइक अगर हम देखें, ज्यादातर हम जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जब बात कर रहे हैं कि लाइक क्रॉनिक डिसऑर्डर और क्या कहें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो आजकल हो रहे हैं, डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये सारे जो आजकल नॉर्मल हो जा रहे हैं, तो ये दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो ये क्यों हो रहे हैं? अनहेल्दी ईटिंग या एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फिजिकल इनएक्टिविटी। मतलब आदिवासी इनएक्टिव कैसे हो सकता है? पहले जब खेतों में काम करके आता था तो अपना थकान दूर करने के लिए, हैव यू एवर थिंक अबाउट हाउ दे डिस्कवर डांस? Like you are a college student, so like in the educational institution we have, like we see that we have failed to recognize the diverse needs of staff and students, right? So I would like to ask from Beneath and Abhay that as a student from a esteemed college, so how was experience being transversing from the institutional space as a Adivasi youth? So like I'm quite conscious about my Adivasi identity, and like I never try to hide it. Like obviously I also had that like dilemma ki, what will people think if I tell people that I'm an Adivasi, that like I like, as an Adivasi I come under the ST category, right? So I take admissions into institutions as an ST. So like people, as soon as you say that you are an ST, they judge you. So that's quite a bold statement, but it's quite true. So like the thing is ki, I never want to like tell people that no, I'm not an Adivasi, or like pretend that I'm not the person that I am. So it's like, so when I first told my friends, yeah, and I was so yes, I am also an ST student, and like I'm an Adivasi. Like the first thing that they asked me was like, do you also dance like Chingarara and like wear leaves and all that? And I was like, no, that's not what we do. That's, we have our own culture, we have everything, and although it's quite offensive, but then like I felt like there was nothing I could do. And even like I wanted to open up, I wanted to like see, explore everything, but then when people just say it, then when they stereotype you, it affects your mental health. Like it makes you like feel down. So if you're not able to like open up, feeling down, like then this your mental health is quite not well. So you can't really like
go about the classes and do like the main purpose of getting into these institutes is to like get better education and then help our like communities and all. So, but then like if we are not able to like be ourselves, then how will we able to like study better? How will we be able to get education? So that's like the issue that I faced, and I think like Ave can also relate to it. And another thing is like as an Adivasi student, like it's quite difficult to like find spaces, like safe spaces for us to like express ourselves. Like as I previously told, ki, when I told my friends ki, हाँ यार, Adivasi, and like they told ki, okay, so like valleys and also like that's where I feel like we need to have some safe spaces around like if we address this mental health issues and like if we like we quite often think like mental health is like it's obviously like still in India, especially in India, it's still not mainstream. They say it's mainstream, but like we are all observant people. We can see that it's not that mainstream. So what I'm trying to say कि हम लोगों को एक सेफ स्पेस एक सेफ स्पेस बनाने की जरूरत है. मतलब अगर हम एक दूसरे से मतलब बात ही ना कर पाए, अगर हम खुल ही ना पा रहे हैं, तो क्या ही फायदा है इतना दूर आने का. तो वही अगर मतलब अच्छा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मतलब ऐसे इश्यूज तो हम फेस करते ही हैं, तो अगर वही है कि आप चाहते हैं कि आप अपने लोगों को पाए, यहाँ अपने लोगों को खोजिए, बट कई बार मिल नहीं पाते हैं क्योंकि सीट्स कम है, ऐसा है वैसा है, और लोग मिल नहीं पाते हैं, और प्लस हमारा कम्युनिटी बहुत छोटा है, तो और भी नहीं मिल पाते हैं. तो ऐसे में मतलब अगर हम अपनी हॉबीज वगैरह को खोजिए, अगर आपको कुछ खेलना पसंद है, तो आप फुटबॉल खेलना पसंद, तो आप फुटबॉल खेलें और उसको मतलब आप एक्सप्लोर करें, और तब आप फुटबॉल खेलने वाले लोगों से मिलेंगे और आपको वहाँ एक सेफ स्पेस मिलेगा. तो अगर आप सेफ स्पेस में आप खुल पा रहे हैं, फिर आप अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और खुद एक तरह से आगे बढ़ पाएंगे. तो लाइक आपने सही कहा स्पेसेस के बारे में. सो like it is different for students. So Abhay, I would like to know from you that how experience about like and what do you think, how easy or hard for students it is to find the spaces and talk about their mental health? Okay, so we as Adivasis, we have not been in like the Tier 1 cities. We have never lived in the Tier 1 cities. Maybe we have been, like some have been like accommodating in those Tier 1 cities, but most of us belong to the Tier 2 or Tier 3 cities, where we are mostly attached to our family and friends, like the close friends whom we have been meeting since the like day one of our childhood and life. When we go out into the central universities or colleges that are far abroad, and for better education or exposure and anything that we have to do because of the need of the cultural appropriation right now. So for all of that, we just need to like we need to understand that when people like us, when people like I would say the people from the minorities like Adivasis, the indigenous group of like people all over the country, when they move into such a wide space where everything is happening so fast and quick, and everything is just so vibrant and colorful, and not does not stop for anyone. It is really it happens to be really difficult to like just talk about mental health, just stop and talk about mental health, talk to someone, or maybe just maybe even find someone who can just listen to you, let alone a counselor who can understand your struggles uh, and the issues that you're going through. So when I'm talking about a college space has always been about social equity and inclusion, which we have not been finding it out because of the I would say the ill treatment of the mental health issues that have been like going around, and because of the because it has always been very westernized. Two, India has never recognized a very like a mental health as a very pressing issue in the medical field. We always hear the things that
that are like physically seen, like that can be like tangibly seen and can be physically touched by others. That is always kept as an issue that has always been like pressing and just intimidating for everyone. So for all this, we need a mental health discourse of what we are going to like of everyone, not only Adivasis. Like we need it for us, but before that we just need it for everyone else, because if we don't have a very general view of what the mental health world is talking about, we won't understand what the Adivasis will have, because we need a very diverse view of that. But if I talk about solving the mental health crisis in the Adivasi world, we just I think there are certain steps which we need to follow. I would say the step one, maybe we should start with understanding and educating everyone about mental health, because as I was saying, that we always have been coming from this tier 2 and tier 3 cities of India. So we had never gotten a chance to just expose ourselves to people, expose ourselves to different cultures, and they're not be in the touch of the the race of the race of the world, what the world is going through. So when we go out to such universities and the educational field, or even the workspace, so it is a very drastic change for us, and we just don't know how to adjust through it. So if when we want to like talk about the mental health of Adivasis, we just have to understand and educate everyone about it. We just need to understand what they are facing, the problems which they are facing, how is it being pressed upon them, and why is it pressed upon them. And then we try to just understand it, and maybe just go about talking to people and talking about how there are some patterns, there are some things which can be easily solved by talking to people, or just being there for people, and just making a whole discourse and making a whole social platform, so that everyone can be heard, and everyone can be easily console to it. So apart from this, step two is that I think we should adjust our own language of understanding the mental health issues, like in the general sense of mental health, where we have like people from like I would say people who are not Adivasis, people who are not minorities, are generally the ones who are flagging the whole event of mental health and curing everyone for the mental health issues. So they are the ones who generally don't understand the struggles, who don't understand the language which we are going to speak about ourselves. They don't understand the struggles which we are going through in our day-to-day lives. Maybe what we are going through is not what they are going through, and they have not read about it, and maybe they have not even researched about it. So what we have to do is just see if and acknowledge the people and the struggles and the language they are speaking, and how it can be communicated better between masses and other people and other like social classes among all the hierarchies. And the third step is like I think the third step is to provide the resources, the resources which we have not been able to get from, like maybe it's as social exclusion, or maybe just time to time we have been like ignored, like in the society. So we just need the resources, the research, the people. We just need people to research upon these issues, and yeah, maybe we just need more people just in this area of research, so that we know what we are what are the cures and what are the problems which everyone is going through, and make up some kind of a pattern or some kind of a flybook which can help each and every one of us at the end. Because mental health is all about mental issues, and mental health is all about social equity and inclusion. And once we solve all the issues, most other issues, I think we have a very we'll have a very inclusive and socially equitable environment, even if it is very diverse or very vast in some senses. Thank you. Yeah, you said very
Thank you for sharing your experiences, because this would also help us or help the people to understand. Also, the further you said about the research and everything, it's helpful. So, beneath, so it's beneath here. Yeah, fine. Yeah. So, like you shared few your experiences. So, आपने जैसे solidarity की भी बात की. आपको मैं क्या लगता है कि solidarity का importance आदिवासी यूथ में और ये मेंटल हेल्थ को समझने के लिए? मतलब मेरे हिसाब से सॉलिडारिटी ये लोगों के बीच में, मतलब आप अकेला मतलब होते हैं, बट वही है कि I think Vineet is having some network issues. Abhay, can you go ahead? We will wait for Vineet's response. Yeah, can you rephrase your question? Yeah. Because So, like you told about the collective and the spaces. So what I understood, that being together or the would that be important for Adivasi educational institution? Just Yancy, can you type it down, because you have been lagging a lot and I cannot hear the full question. okay. Am I audible now? Yeah, you're audible. Yeah. So anybody like Abhay, Swati, so जैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहते हैं और हम बातें करते स्पेसेस के बारे में, तो हमारा एकजुट रहना, हमारा सॉलिडारिटी, हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ? या What Vineet and I have been facing, like Vineet and I have been in the same college for the past 1 year, because of COVID we haven't been interacting so well. So I would give it to Vineet that उसने सबसे पहले recognize किया था ऐसा कुछ problem in our college, that we don't have a collective, we don't have a society of our own, and we have been very isolated. And I have been facing the same thing since the first year of my college, that maybe I'm the only Adivasi studying in this institution, and it feels like I won't say exclusive or a very something that is very to be proud of. It just felt way too lonely at this point. Someone who could not understand how it feels to be socially excluded. I could not connect to anyone, or I could not share my story to anyone. So this all happened. So beneath the first, I guess he is the first one who recognized this kind of problem, and we had to form some kind of collective in our college, and we try to address each one of us. And although and it's like, I can say it's a very good example of how the collectives, how the societies we form in different spaces, when we find people of our own, changes how we see or look at the world, or how we treat everyone else. So things change when you find people of your own, and see that they are going through the same things, or maybe not even if we are not able to solve anything, but we are just able to connect to everyone, and we are just hopeful that yeah, maybe we are not alone, and we can just cross over to that path without being judged, without being seen differently in different lenses, and we can still make it on our own. So just people, Adivasis, need some kind of collective, some kind of an encouragement, some kind of an acknowledgement, so that they are accepted, and they are seen through the same lenses, and or not even that, and not even that, they can see themselves in the same lenses. Say they can have the they can have this self-esteem of themselves, and be proud of who they are, because these collectives, these small societies, and whatever they are, they just give them the space, and give them the confidence of the struggles that they face, and because these are the people they just know, and these are the people whom
even though they haven't met like since the last 20-30 years, but maybe they have been just friends for the life, maybe I should say the past 1 month, but they can connect to them because they are people who have been going through the same lot. So I'm just concluding that maybe a collective environment in the universities, in the colleges is required, so that everyone in the cognizant environment has this kind of feeling of togetherness and a brotherhood, and not even in their own community, but even when they go out, they can address their own problems more confidently and make changes according to their own comfort uh, and everything that makes them comfortable. Yeah, really makes sense. And thank you for your insight. So I would like to welcome Swati. Swati, yeah. Yes. So, am I audible? Yes, you're audible. Okay, sure. So as we see that institutions are historically biased against minorities, and these biases can be found at all levels functioning. So you are from Maitri, and so it works with the students community. So I want to understand that what were some of the needs students which prompted the creation of Maitri, the mental wellness corner. Yeah. So I would like to start with my medical experiences, like what I have gone, what I've actually कैसा मेरा experience रहा है और कैसे जो narrative worlds हुआ है, or like reading articles and through this. So like even though we have so many incidences of suicide, dropout, and caste discrimination, but yet there is no strong voices within the academia, especially medicine, to acknowledge this discrimination. And there is actually a continual denial of discrimination that are experienced by the Adivasi and student from a marginalized caste. And there's a quotation that I have heard while listening a small Zoom meet by a medical fraternity group, like, we practice caste under our coat from classroom to conference. And the journey of a student after like entering into the medical school, like with the sense of a pride, then it later changes into a survival journey within the academia. And we often put the superficial mark of being a reserve, but not what the student going through that whole journey of a medical studies. And he or she may be looking for that sense of belongingness and connection to vibe with the people. And sometimes for many of us, this day-to-day microaggression, and in attempt to be a people pleaser, we actually internalize this myopic and very reductionist view of our identity, and there is also a negative perceptions of our identity that actually we imbibe within ourselves throughout this journey after the medicine. And these are actually being constantly being realized by a professor or student or classmate. And often what happens the next is that we are not able to form that a strong identity consciousness. And sometimes being radical and vocal means to be an elephant among the ants and be ready for the repercussion that you will be going to face with this covert casteism, I would say, in very subtle form. So actually, this lack of spaces to understand the students hailing from this marginalized caste or Adivasi community that actually inspire us to form this group, Mentri, a mental wellness corner group. Yeah, that's my answer. Thank you. He told that collective important, and as Swati also told that Maitri is a student collective. So I want to say that how student initiative like Maitri help students to thrive rather than just survive inside the institution. How does it help to help them in a life at the institution also? So like I want to shed a light on this important issue. So we have to understand that the
problem just don't start inside the educational institution or academia. Instead of looking at it more personal level, we need to look at that a broader picture of it. We need to shift the gaze from a Adivasi or a marginalized caste student to an oppressed caste who actually breed these practices within this institutions. And even being openly being casteist or like blatantly calling out the students, they actually don't face the repercussion of their behavior. And this is not just so what happens by limiting this within the institution, we actually forget that these institutions are also a part of a society, uh, that actually breed these practices, and we need to address that issues. And it is also a failure of a society at a large to not to able to safeguard the student. And this practices which are actually also embedded into the religious practices of the society, which need to be questioned and dismantled. And further, this starts with an uncomfortable dialogue. So through our mathri, it's a small attempt to start that uncomfortable dialogue and to provide a social support which would help to build a confidence and awareness and to sensitize the general public about this issue. Thank you. Yancy, sorry to interrupt, but I think Vineet had something to say. Yes. Yep. So like the question to me that time was about solidarity, right? Yeah. So like I got disconnected. So sorry about that. So as a person, like when you have a person from like your area or like a person whom you feel more comfortable and like you have आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और आप मतलब आप ज़्यादा वही फिर से वही बात आ जाती है खुद पाने की। तो वही है जब मैंने सबसे पहले एडमिशन लिया था तो फिर मैं जब यहाँ आया तो मेरे को भी अब जैसा लगा कि मैं एक आदिवासी हूँ। किसे बताऊँ कि मतलब हमारे कंसर्न्स और हमारे नीड्स अलग होते हैं ना लोगों से। मतलब अगर हम कुछ मेंटल इशू फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो वैसे में हम किसी दूसरे अदर को मतलब जैसे मैरी जी कह रही थी कि अदर्स, तो उन अदर्स लोगों को वो बता नहीं पाते हैं और मतलब बता भी दे तो फिर वो समझ नहीं पाते और वो इशू एड्रेस हो नहीं पाता। फिर उस इशू को बताने का तो कौन नहीं होता क्योंकि वो एड्रेस ही नहीं हो पा रहा। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे मतलब हमसे रिलेट कर सके, हमारी कहानी समझ सके और हमसे मतलब कनेक्ट कर सके। तो जब मैं कॉलेज आया तो मैंने कुछ दिन के लिए मेरे को लगा कोई है नहीं, लेकिन लकीली मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो एक दोस्त मिला मेरे को जो वो भी झारखंड से ही है। तो इसलिए उस तरह से मेरे को लोग मिले और मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलिए कुछ कर सकते हैं। अगर ये भी है तो वो चलिए एक बंदा तो है जो मेरा साथ देगा, उसके हेल्प के थ्रू मैं और आगे बढ़ पाऊंगा। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा कलेक्टिव स्टार्ट किया और उस कलेक्टिव के थ्रू हमने शायद डीयू में लगता है मेरे को कि ये इवेंट हमने पहले मतलब सबसे पहला कॉलेज है जिसने किया। और हम सबसे खास बात थी कि जब हमने अपना इवेंट किया, हमने एक डांस ऑर्गेनाइज किया, हमने सब कलेक्टिव मिलके, तो उस डांस को लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। और यहाँ के लोग मतलब केवल हमारे लोगों ने नहीं, यहाँ के दिल्ली के लोग मतलब नॉन आदिवासी ने भी अप्रिशिएट किया। वो हमारे साथ नाचे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो हम भी वही चाहते हैं कि मतलब उनसे भी हमारा रिश्ता अच्छा बने रहे और अदर्स जो है उनसे। और वही अगर ये सॉलिडारिटी होती है मतलब लोग आपके साथ हैं तो फिर आपको खुद में अच्छा लगता है और आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है। और आपकी अगर मेंटल हेल्थ स्टेबल है तो हर चीज़ मुमकिन है। आप और आगे बढ़ सकते हैं, अपने एजुकेशन में ध्यान दे सकते हैं, ना कि आप एडजस्ट करने के बारे में सोचिए। क्योंकि जब हम छोटे शहरों से आते हैं यहाँ तो हमें एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक ऐसा हो जाता है कि हमारा एक्सेंट भी थोड़ा अलग होता है, लोग जज करते हैं। और फिर दिल्ली ऐसा शहर भी है जहाँ मतलब लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब वो चीट करने की कोशिश करते हैं हर वक्त। तो अगर आप वो हमारे मतलब शक्ल से पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो थोड़े से मतलब अलग दिखते हैं और इनका बोलने चालने का अलग है ढंग,
ये इनका एक्सेंट थोड़ा गांव वाला टाइप से है, और जब वो लोग झारखंड से हैं तो उन्हें लगता है भाई ये झारखंड तो बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, तो उस तरह से वो आपको चीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके साथ सॉलिडारिटी है, आप लोगों के साथ है, तो आप खुल पाते हैं और लोगों से मतलब ऐसे जो आपको चीट करना चाह रहे हैं उनसे डील कर पाते हैं। आपका मेंटल हेल्थ अगर स्टेबल है तो आप इनसे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिल डुलते हैं आपका मेंटल हेल्थ, तो फिर वही है कि लोगों से आप बातचीत नहीं कर पाते हैं ठीक से, और लोग आपका और भी ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वही, अगर आप हमें मतलब अपने ही लोगों का साथ भी दें तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें कोई रखवाला हमारा नहीं आने वाला, कोई सिपाही, हम अपने लिए हैं। हम अगर साथ में चलते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो वही है, मैं इसी यही कंक्लूड करता हूँ कि सब अगर लोग हम आपस में एक साथ एकता बना के चलते हैं तो बिल्कुल ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम आपस में फूट रखते हैं तो वो तो गलत है, वो हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। चलिए, वही है मेरा बात की, साथ जी, बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने। इस यही मुहिम अगर एक साथ मिलके करे तो ये चीज हम जान पाएंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में और अच्छे से सबसे बात भी कर पाएंगे। तो मैं और ये समझना चाहती हूँ, हमने स्टूडेंट्स प्रोफेशनल व्यू पॉइंट से हमने सुना, तो दिस इज फॉर ऑल पैनलिस्ट दैट कि अगर हम और रिलेट तो वो कैसे उनके क्या एक्शंस है जो विच वुड बी हेल्प फॉर आदिवासी यूथ, जैसे कि मेडिकल्स हो गए या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपकी इन शॉर्ट व्यू पॉइंट्स जानना चाहूँगा, क्या रोल हो सकता है। अभय, स्वाति और अच्छा, आप अपना क्वेश्चन एक बार दोहरा सकते हैं क्या? थोड़ा सा मेरे हाँ कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो रहा है ओके जरूर। सो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने स्टूडेंट्स आपके पर्सपेक्टिव को सुना, काउंसलर के पर्सपेक्टिव को सुना। सो अब मेंटल हेल्थ के और भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि हम एक मेडिकल व्यू पॉइंट में हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर जैसे स्टूडेंट्स के लाइफ में जैसे कि हम जैसे हो गए, तो अलग बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो उनका रोल हो सकता है, या फिर वो कैसे काम कर सकते हैं जो आदिवासी यूथ के लिए हेल्पफुल हो। Yes, Yancy, am I audible? यस Yeah. यस, यू आर ऑडिबल। यस, स्वाति जी ने जिस तरह से बताया कि मैत्री के प्लेटफॉर्म में रह के वहाँ पे काफी अच्छी चीजें वो कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ का एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बनाया कि स्टूडेंट्स को किस तरह से मदद मिल सके, व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड दे आर हैविंग, एंड देन व्हेन दे कम टू द इंस्टीट्यूशन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। एंड उस बीच में वो कहीं ना कहीं जो गैप्स है उसको वो ब्रिज के थ्रू से जोड़ना चाह रहे हैं, और उस पे क्या कहेंगे कि वो एक कम्युनिकेशन का जरिया बन रहा है। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। सो थ्रू माय एक्सपीरियंसेस की ये मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स तक सब कोई जा नहीं सकते हैं, या फिर जो काउंसलर है, प्रोफेशनल है, इतनी ज्यादा तादाद में भी अवेलेबल नहीं होंगे। इनफैक्ट हर जगह में ज़रूरत है। तो मेरा एक स्कूल का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर स्कूल्स में अगर काउंसलर ना हो तो आप क्या करें। तो मैंने वहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव देखा पीयर काउंसलिंग का। सो मैत्री जो इनिशिएटिव है, मैंने ये देखा, मैंने महसूस किया कि पीयर काउंसलिंग का बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। व्हाई कांट वी डू, बिकॉज हम लोग के जो आदिवासी कम्युनिटी में
कहा जाता है, जैसे सहिया जोड़ाना बोलते हैं, या मीता बैठना, या जो होता है कि जब हम बच्चे का नामकरण करते हैं तो हम जो चावल डाल करके जो कुन पूर्वज का नाम, उस पूर्वज के नाम पे हम बच्चे का नाम रखते हैं। तो वो जो मीता बैठना या मीता जोड़ना क्या होता था, इसको हम लोग पहले, हमारे जो पुरखे होते थे, दे आर आवर प्रोटेक्टर्स, लाइक वी आर जस्ट एबल टू कम्युनिकेट, वी आर रेप्लिकेटिंग देयर बिहेवियर, देयर एटीट्यूड, कहीं ना कहीं हम पे झलकता था। तो जब हम ये और आदिवासी कम्युनिटी सिर्फ एक टाइप का ही नहीं है पूरा इंडिया में, देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज, उरांव, मुंडा, खड़िया के अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कम्युनिटीज हैं हमारे इंडिया में, एंड एवरी कम्युनिटी हैव देयर ओन लैंग्वेज, और उनकी अपनी भाषा है, अपनी तरीके से समाज को चलाने के तरीके हैं। तो एक कम्युनिटी का अगर काउंसलिंग या कुछ भी सीखता है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक या कल्चर स्पेसिफिक सीखता है, तो जरूरी नहीं कि सेम कल्चर या भाषा जो है वो दूसरा कम्युनिटी बोलता हो या सेम कल्चर फॉलो करता हो, राइट। तो हर कम्युनिटी, हमें कम्युनिटी को स्ट्रेंथ, अगर हमें कम्युनिटी का मेंटल हेल्थ देखना है तो कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, रिसोर्स वहीं से लाने होंगे, राइट। तो जिस तरह से अब झारखंड में ये है कि जो सहिया जो कॉन्सेप्ट है उसको पैरामेडिकल में अप्लाई कर दिया गया है। एएनएम के नीचे जो सहिया काम करते हैं वो ज्यादातर बच्चों को टीकाकरण के लिए और अभी कोविड के समय में वैक्सीनेशन का उन्होंने बहुत मतलब उम्दा रोल अदा किया है। सो सहिया ऑलरेडी एग्जिस्ट इन झारखंड। सो बट जब हम छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के जो आदिवासी कम्युनिटी में देखते हैं कि जो ओडिया में बोलते हैं मित्तो बसिवा, या ये झारखंड में या छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि सहिया जोड़ाना या जोड़ना, उसमें हम देखते हैं कि जब सहिया दो लोग जोड़ते हैं, एक जरूरी नहीं, दैट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, एक लड़का के साथ ही जोड़े या एक लड़की के साथ जोड़े, नहीं। ऐसे होता है कि एक लड़का एक लड़की के साथ भी, एंड दे आर लाइक फ्रेंड्स, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, एंड वो लवर्स नहीं होते हैं, वो फ्यूचर हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, बट दे आर फ्रेंड्स, लाइक सहिया जुड़ाना। जैसे एक सहिया अगर जुड़ाता है किसी और से तो वो एक नाम देता है, लाइक करम करम सहिया जोड़ना, या कोई भी आम का सहिया, जामुन सहिया जोड़ना, या जवा फूल जवा सहिया जोड़ना, या कुछ भी। तो ये क्या होता है कि कम्युनिटी से ही आ रहा है, एंड दे आर व्हाट, जब आप काउंसलिंग का जो अगर फॉर्मल ये देखेंगे या काउंसलर एंड काउंसलिंग का, तो इनके बीच में प्रोफेशनल, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है उसको थेरेप्यूटिक रिलेशन कहते हैं। और उसमें ज्यादातर होता है कि कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होता है क्लाइंट्स का उसको काउंसलर तक ही रहता है, और काउंसलर क्या करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट, वो काउंसलिंग का प्रोसेस उस पे उसको थेरेप्यूटिक प्रोसेस में लेके जाते हैं ताकि उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो। तो हम हर जगह में काउंसलर नहीं पहुंच सकते हैं, तो व्हाई कांट वी इनिशिएट दिस काइंड की जो मीता और जो सहिया वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक बहुत ही रिलायबल रिश्ता रहा है आदिवासियों में, जो कि कॉन्फिडेंशियल भी होता है एंड ट्रस्ट वर्दी भी होता है। तो हम इसके थ्रू से शायद पीयर काउंसलिंग जो यंगस्टर हैं, जैसे कॉलेज लेवल में जब न्यू कमर्स आते हैं, या एक बच्चा स्कूल में आता है या कोई जॉब प्रोफेशन में जाता है या न्यू जगह में जाता है, तो वहाँ पे भी कई सारे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हर जगह में काउंसलर अवेलेबल नहीं होते। व्हाई कांट वी ट्रेन सम ऑफ द पीयर काउंसलर जो सेम एज ग्रुप में हो और उनकी मेंटालिटी को समझ पाए। और ट्रेनिंग के लिए जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में एक इनिशिएटिव लिया गया है, आई कॉल एक इनिशिएटिव है टिस मुंबई से, और अमेरिकेयर बोल करके एक इनिशिएटिव लिया गया है जॉइंट इंटरवेंशन के थ्रू से। तो कुछ कुछ स्कॉलरशिप आते हैं कि यंगस्टर्स को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो इस पे परस्यू करना चाहते हैं या काउंसलिंग का कुछ टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करके उसको कम्युनिटी या ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब स्कॉलरशिप देते हैं, राइट। तो
उसमें कुछ ट्रेनिंग्स हो सकते हैं ताकि लोग जो है कल्चर स्पेसिफिक, लैंग्वेज स्पेसिफिक, जैसे कोई खड़िया कम्युनिटी से आ रहा है तो वो खड़िया बोलने सीखने जाना चाहिए, हिंदी आना चाहिए या इंग्लिश आना चाहिए, सो दैट कि वो फॉर्मल वे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उस पर मदद कर सके, और कम्युनिकेशन जो हम जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी भाषा को हम समझ सकें और उसको जो नीड्स है उसको हम कैटर कर सकें। तो इस तरह से हम ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं कि हम कम्युनिटी लेवल में इस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेट पे या नेशनल लेवल के जो एक्सलेंस है, जैसे निम्हांस हो गया या एम्स हो गया या हमारी स्टेट में जो भी लोकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट या वार्ड है, उस पर सिर्फ डिपेंड नहीं होगा कि हम अगर कम्युनिटी लेवल तक हम इस तरह से काम करें तो ज़्यादा मेंटल हेल्थ एट कम्युनिटी लेवल पर हम मीट कर सकते हैं उनके नीड्स को, उनके प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हम अपने ही कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं, हम अपना एक रोल अदा कर सकते हैं एज अ लीडर इन मेंटल हेल्थ, और उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दोज हु आर students at Stephens College, even they have student cell, and then वहाँ पे काउंसलिंग का, स्टूडेंट काउंसलिंग का सेल हो सकता है, या कॉलेज में काउंसलर्स भी हैं अवेलेबल। सो वो काउंसलर हाउ मच सेंसिटिव टू द कम्युनिटीज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे कितने वो सेंसिटिव हैं वो नहीं है पता, तो कुछ ट्रेनिंग्स उनको दिए जा सकते हैं जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं, एंड दे कैन ट्रेन, दे कैन counsel, or they can provide any kind of mental support, emotional support to the students, to the peer group. So इस वे में हम काम कर सकते हैं। जरूर। तो मेरा और एक सवाल रहे, बिकॉज हमारे पास समय का, तो मैं लास्ट में, जैसे कि हम आदिवासी यूथ के बारे में या फिर आदिवासी जो भी है, तो मैं ये जानना चाहूंगी फ्रॉम द पैनलिस्ट दैट इंडिजिनियस कैसे हमारी में मदद कर सकता है, या फिर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि हाउ इट you and how it can help the community? अभय, विनीत, स्वाति। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम मतलब खासकर अपने युवाओं में, तो युवाओं का, जैसे रजनी जी ने कहा कि आजकल का कोपिंग मैकेनिज्म प्लस स्कूल लगने का जो आजकल का ट्रेंड है कि चलो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इससे हम भूल लगेंगे। तो असल में ये जो कोपिंग मैकेनिज्म है मेंटल हेल्थ को लेकर, ये ऑब्वियसली गलत है। और अगर हम एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, एक ऐसा हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि हम मतलब जितने भी जूनियर्स हैं उनको एक एक सीनियर अपॉइंट किया जाता है बडी प्रोग्राम, जिसके थ्रू वो हमें गाइड करते हैं, और हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनका एडवाइस ले सकते हैं। तो अगर हम भी ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे अभी हम डीयू में इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी बनाएं, एक लिंक्ड कम्युनिटी बनाएं, जिससे हम एक दूसरे से बात कर पाए और हम एक दूसरे को अपने इश्यूज बता पाए। तो फिर उसी कम्युनिटी को, उसी मतलब इनिशिएटिव को हम धीरे धीरे करके और बड़ा करके, जैसे हम लोग, ये बोलना गलत नहीं होगा कि हम लोग थोड़ा प्रिविलेज हो गए हैं अभी, क्योंकि हम इतने दूर आ गए हैं, तो हमने कुछ चीज़ देखे जो हमारे घरों में जो अभी नए युवा उन्होंने नहीं देखा। तो अगर हम इसी इनिशिएटिव को जो हम छोटा सा चालू करें कि डीयू में हम सब लिंक हैं, तो वैसे ही अगर हम अपने घरों में भी वापस वहाँ भी लिंक हो पाए और लोगों को एक तरह से कॉन्शियस करा पाए कि हाँ ये इश्यूज होती है, और मतलब हम एज एन एम्बेसडर्स जाए कि हाँ देखिए ऐसा होता है,
कि मेंटल हेल्थ भी एक चीज है और उसको एड्रेस करना भी जरूरी है, और उसका ये जो आप कोपिंग मैकेनिज्म है कि जो भी मतलब सब्सटेंस पे जीना वो गलत है। तो अगर आप हम ऐसा कुछ करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं तो ऐसे में हम उनको हेल्प कर सकते हैं और उनका मेंटल हेल्थ ठीक कर सकते हैं, और अगर वो उस कोपिंग मैकेनिज्म से हट पाए तो वो दूसरी चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। वो दूसरा चीज हो सकता है एडुकेशन। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ आए हैं तो हमारे जैसे और भी लोग आए, हमारे ही गांव वाले सब जितने युवा है और लोग आए, सब आते जाए, और इसी तरह से मतलब हम एक नेटवर्क बनाए ताकि हम जाए और एक इनिशिएटिव हमारे तरफ से भी रहे। अभय, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं कि हाउ डस आदिवासी होने से हाउ डस coming from that community can help? या तो विनीत का ही लाइक जो विनीत ने कहा उसी को ऐड करते हुए आई हैव सीन दैट look I won't say we are privileged, but we are sort of privileged in our own communities, and yeah, so what we need is कि हम लोग अभी जाएं जहां से हम लोग अभी लाइक प्रिविलेज अपने प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो सोसाइटीज एंड जो कल्चरल बैकग्राउंड हम नए कल्चरल बैकग्राउंड से हम लोग अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां सबसे हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस गेन करके वापस अपने शहरों सिटीज एंड कम्युनिटीज में जाके वापस उनको एज सॉल्व इश्यूज दे, एज चीजों को बताएं कि हाँ मे बी ये हो सकता है, वो हो सकता है, दिस इज समथिंग दैट these are the mental health issues that we are facing, these are the problems that we are facing, and ये सब हम लोग उनके साथ एक डिस्कशन, नॉट इवन हम लोग इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए भी वर्क देख नहीं रहे हैं हम लोग अभी। राइट नाउ वी आर लुकिंग एट just to generate some kind of discussion, some kind of a discourse, so that we all are on the same page. Even when we go out like in some of those kind of places, I just want to make sure कि लोग वहां जाके भी अकेला ना फेस करें। सो जैसे विनीत और हमने स्टार्ट किया था अपने खुद के कॉलेज में अपना खुद का एक कलेक्टिव एक कलेक्टिव बनाया था छोटा सा, जिसकी वजह से हम लोगों ने सब अपने कम्युनिटी एंड इवन डिस्कशंस होने लगे थे अलग अलग चीज़ों के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में। लोगों को कम से कम ये कंफर्ट लगने लगा कि या मे बी हमारे जैसे दिखने वाले लोग, हमारे जैसे नाम वाले लोग, हमारे जैसे सरने वाले लोग, ये हमारे जैसे लोग जिनके पास हमारा सेम स्टोरीज है बोलने के लिए, वो है आसपास। तो एज एन आदिवासी आई वुड से कि हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए एंड ये माइंडफुल रहना चाहिए कि that we are beings that would need some kind of support, some kind of a push from everyone else. So whatever we do, whatever the privileged people from our communities can do, should just go and expand the knowledge and go impart it with everyone else, so that everyone else can be a part of the journey that we are all embarking on, and so that everybody feels safe on it. Everybody feels safe, feels that it's a safer place to go outside the comfort zones and be whatever they want to, and and it would not affect them mentally or physically or any kind of thing, so that they feel safe, and they are made to feel safe in that way. Thank you. Thank you so much, Abhay. Swati, we would like to hear from you also. Like, I don't have very much to say, but yeah, through our organization, actually, we are trying to make that small step to actually fill that gap that is related to mental health of young indigenous community students and from marginalized caste. So yeah, we are exploring, learning, and healing. Yeah, that much I would say. Yeah. Yeah, Yancy, I wanted to add something. Yes. जिस तरह से विनीत ने बताया कि उनके कॉलेज में ये इनिशिएटिव है, बड़ी इनिशिएटिव है, जिसमें आपको एक सीनियर अलॉट किए जाते हैं, या इट्स लाइक अ सेम लाइक अ पीयर काउंसलर। सो बड़ी कह सकते हैं, तो बड़ी इनिशिएटिव इज आल्सो ए गुड इनिशिएटिव टू बिकम ए मेंटर, or maybe fellow will be maintaining the
क्या कहेंगे उनको इमोशनल मोरल सपोर्ट के लिए। बट जहाँ तक बात है मेंटल हेल्थ की, तो उसके जो ये एक प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल्स हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो वो ट्रेंड होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, लेकिन हर कोई ये ट्रेनिंग नहीं कर पाता है। तो जैसे मैंने कल ही बात कर रही थी मैं अपने फेलो काउंसलर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो ज़्यादातर वहाँ के आदिवासी जो है वो क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो वहाँ पे मैंने बात की कि हाउ यू अप्रोच व्हेन एनी हैव do you have you ever seen the alcohol dependency or abuse and everything? So she said yes, यहाँ बहुत prevalent है। तो how the mass approach to the mental health then? Are they going to any kind of professional settings? यहाँ कोई available नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, एंड वहाँ पे ज़्यादातर लोग डिपेंड ऑन चर्च एंड चर्च के पास्टर। सो आप सोच पाएंगे कि उनके जब कुछ भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो पास्टर उनको कैसे काउंसिल करते होंगे। सो फिर भी उनके पास जो रिसोर्स है उसके तहत वो अपना मैनेज करते हैं। तो और जब हम सेंट्रल इंडिया या हम जो मेन लाइन इंडिया अगर देखते हैं, इसमें जो आदिवासी मुद्दे होते हैं, चाहे वो विस्थापन से जुड़ा हो, चाहे वो बहुत सारे मिलिट्री डोमिनेटेड एरियाज में जो प्रकार के जो आदिवासी के ऊपर में प्रकार के उत्पीड़न हो रहे हैं उसको लेकर के हो, या जनरल मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो, तो इसमें लोग ज़्यादातर ले दे करके रिलीजियस फेथ या बिलीफ पे चले जाते हैं। सुपरस्टिशन और फेथ के बीच में एक थीन लाइन का डिफरेंस है कि कुछ लोग समझते हैं कि हम फेथ को कन्फेस कर रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली डूइंग द सुपरस्टिशन। अगर सोचिए कि एक स्किज़ोफ्रेनिक या जिसको डिप्रेशन हो, उसको अगर आप बाबा या कोई पास्टर या कोई प्रेयर सेल में ले जाते हैं तो उसका क्या हालत होगा, राइट? इफ द पर्सन is seeking the proper care from a professional or a counselor or maybe a psychiatrist or psychologist, so वो बेहतर कर पाएगा या बेहतर हो पाएगा उसका मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो जरूरी है। तो जब जैसे हर यूनिवर्सिटी क्या करता है कि विंटर स्कूल या समर स्कूल होता है कॉलेजेस में, तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटल हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग हो, पीयर ग्रुप ट्रेनिंग या बॉडी ट्रेनिंग हो, जिससे और बेहतर मेंटल हेल्थ इश्यूज को चेक किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके, राइट? तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। सो कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जाना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल वहीं तक जाना चाहिए जहां तक आप व्यक्ति पूजा या लाइक बाबा या कोई ऐसा व्यक्ति पूजा और शबनिज्म तक ना चले जाएं। दैट इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पे आपको उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी श्योर नहीं है कि वो ट्रीट करेगा आपको। लाइक आप जानते ही हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी में डिफरेंसेस क्या है। होम्योपैथी को स्टिल बैन किया हुआ है। 99.9% आप एक प्लासेबो ही देते हैं और उसका 1% ही इफेक्ट होता है। बहुत लोग बिलीफ पे भी क्योर होते हैं, राइट? तो जर्मनी जैसे कंट्रीज को बैन भी कर रखा है। तो ऐसे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ में हम यही कहेंगे कि लोगों को थोड़ा कन्वेंशनल वे में जाना और अप्रोच करना ज़्यादा बेहतर होगा। और व्यक्ति पूजा और दिस बिलीफ फेथ वन सर्टेन पॉइंट ऑफ में ठीक है, लेकिन टू मच तक नहीं है। और इसी के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या ट्रेन यूथ का बहुत ज़रूरत है।
खासकर एडोलसेंट में, और एडोलसेंट जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं खासकर आदिवासी में, तो हमें ट्रेंड बॉडी चाहिए हमारे कम्युनिटीज में, जो कि Yeah. हमारी भाषा हमारे कम्युनिटी को समझे जाने एंड उसके हिसाब से वो काउंसिल कर पाए या मदद दे पाए। या धन्यवाद। कि हमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल बोथ in a balanced way, that would be very helpful. So thank you so much. Thank you thank you Rashni ma'am, thank you Swati, Abhay. I would say, this discussion can go for long. Happy that we did that. See it as a start, that a student and collect and work together. So thank you so much, and welcome if they have any question. So I think people had written their questions early on. Should I read it out? Sure, sir. Yeah, so I think to Abhay, there was one question on, do you think university spaces do enough to be cognizant of diverse mental health needs of students and to address the exclusion phase? Could you talk a little bit more on this? I think you have talked a little bit about this, right? Yeah, I guess I have answered that question in the when I was having the conversation. Yeah. To Rajni, someone had asked, can you speak a little bit about the ways the conventional approaches to psychosocial health fail to understand the tribal societies? You have all talked about the need for a nuanced, differentiated approach to the tribal psyche. It would be helpful if we talk about the mainstream approaches end up making it difficult to understand mental health of tribal communities. तो किसी ने पूछा है कि कैसे मेन स्ट्रीम जो मेंटल हेल्थ है वो शायद ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन बना देता है उनके पास जाना भी। जैसे कभी कभी थेरेपिस्ट ही डिस्क्रिमिनेशन में जुड़ जाते हैं और उनको खुद भी पता नहीं रहता कि कैसे वो एलियनेट कर सकते हैं ट्राइबल क्लाइंट्स को। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। जी, काउंसलर्स जो होते हैं वो उनको कल्चर सेंसिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में भी बोला जाता है कि आप जज नहीं करना आपको अपने क्लाइंट्स को, और उनकी कल्चर और उनके सेटिंग्स को आपको समझना है। एंड काउंसलर का ये भी है कि उसका काउंसलिंग का एथिक्स है कि आपको एम्पैथी, नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी, आप उसके साथ में उसके चीज़ों को समझना है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, देन इट इज़ नॉट ए काउंसलिंग एक्चुअली। एंड काउंसलर के लिए या जो डॉक्टर्स हैं या प्रोफेशनल है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो दे आर ऑल्सो मीन्स पार्ट ऑफ क्रिएटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, है ना। तो अगर ऐसे है तो फिर आप अप्रोच शायद ही ना कर पाए। और ज़्यादातर लोग इसलिए भी अप्रोच क्योंकि ये आप सेंसिटिव भी हो चाहे कुछ भी हो, ये फर्स्ट 2, 3, 5 जो सेशंस होते हैं उसमें 90% विड्रॉल होता है। 90% केसेस ये है कि अगर आप एक बार गए अपने इश्यूज को बताए, दूसरे बार गए, तीसरे बार बताए, तो काउंसलर का ये है कि आपको वो सोल्यूशन नहीं देते हैं, आपको सुनते हैं और आपका प्रॉब्लम को वो मदद करते हैं आपको अंडरस्टैंड करने का, और उसको आप ही को खोजना होता है। तो हम लोग का ये है कि हमको मुझे अगर तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर के पास गए, वो दवाई दिए तो हम खा के ठीक हो गए। बट मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपको कहीं जाएं और आपको कोई दवाई दे दे और आप एकदम से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए काफी सारे चीजों में ये होता है कि आप काउंसलर के पास जाते हैं और आपको लगता है कि आप काउंसलर सुन रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, और आपको कुछ भी चीज नहीं बता रहा है कि वो आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। आप काउंसलर के पास अपने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने नहीं जाते हैं, है ना। तो काउंसलर
जो आपको लगता है कि सुन रहा है और हेल्प नहीं कर रहा है, एक्चुअली ही इज हेल्पिंग और शी इज हेल्पिंग, नॉट जजिंग यू। ये हमारा इसीलिए शायद बहुत लोग विड्रॉ भी करते हैं जाने से काउंसलर के पास। दिस वन थिंग, कन्वेंशनल वे। और हर स्टेट में हर सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल में सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अवेलेबल है। और अगर अगर कहीं पे कोई फिजिकली नहीं जा पा रहा है, उसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक मनो संवाद। आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ मनो संवाद। मनो संवाद है, मनो शांति है, जाइलो मेंटल हेल्थ मेंटल प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री मेंटल हेल्थ फ्री मेंटल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है विदाउट चेकिंग योर बैकग्राउंड, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, फर्स्ट 3 सेशंस भी। तो हम खुद भी एक्सप्लोर करें, और अगर इफ एनीबडी वांट्स, I will share the links and the list of organization who are providing mental health support online free of cost. तो आप उसमें भी आप कर सकते हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल तो आप बचें, ताकि आप अपने इश्यूज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं।